نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایسے ہی خود ساختہ اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت قرار دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر طرح کی وہ نئی بات جو دین میں نکالی گئی بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور اس طرح کی بدعتیں گمراہی ہیں۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں اور اس کے احسانات کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو۔ وسخر لکم الانہار، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، اور اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے میوہ جات اور پھل فروٹ اگانے والا، جو کہ انسانوں کے لیے رزق کا باعث ہے، اور سمندر میں کشتیوں کو رواں دواں کرنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ فرمایا وسخر لکم الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا۔ تعالیٰ نے فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اور مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ آیت نمبر 32 اور یہ 33 ہے، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو لگاتار چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات اور دن کو بھی تمہارے خاطر کام پر لگا دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ یہ سورہ ابراہیم کی 3 آیتیں ہیں، 32، 33 اور 34۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ سورج اور چاند کا بھی ذکر کیا کہ وہ کیسے برابر اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی ان کو مفوض کر دی ہے وہ اس پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے رات اور دن کو اللہ نے مسخر کیا۔ رات اور دن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
تم نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ دی ہو. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، اس قدر ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن انسان ہی کیا ہے، یہ بے انصاف اور ناشکرہ ہے. عزیز ساتھیوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا. دن اور رات کیا ہیں؟ یہ وقت ہیں. وقت کی بڑی قدر و منزلت ہے. وقت ہی یہ زمانہ ہے، وقت ہی ہے تو آپ کوئی نیکی کا کام انجام دے سکتے. جب ہم ان آیات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نعمت خاص طور پر ذکر کیا، اور وہ یہی دن رات ہے. کہ انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے. کیسے؟ ایک رات آتی ہے اور پھر صبح نمودار ہو کر دن آ جاتا ہے، اور پھر شام ہوتے ہی رات پھر سے آ جاتی ہے. یہ دن اور رات در حقیقت کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی کے دن اور رات پر مشتمل اس کی عمر کا حصہ ہے. اسی کا نام وقت ہے. اس سے ثابت ہوا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے. سال کی ابتدا ہوتی ہے، رات سے ہی شور مچانا شروع کر دیتے. نیا سال آ گیا، پرانا چلا گیا. یاد رکھے جو سال گزرا، گزرے ہوئے سال میں آپ نے کیا کچھ نیکیاں کی، آپ کو چاہیے اپنا محاسبہ کریں. آنے والے سال میں آپ کیا کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت میں کیسے زندگی گزرے گی، اس کا عزم کریں. یہ رات دن جو ہفتوں میں بن کر اور پھر مہینے اور پھر مہینوں سے سال بن جاتے ہیں، اور سال سال سے ہماری زندگی گھٹتی چلی جاتی. اس وجہ سے ان میں خوشیاں نہیں منانی ہیں. ویسے بھی ایک انسان کا کوئی بھی سامان گھٹ جائے تو اس میں کمی واقع ہوتی ہے، انسان کو اس کا افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے جیسے انسان اس میں گھٹ رہا ہے خوشیاں مناتا ہے. سالانہ طور پر کبھی برتھ ڈے اور کبھی یہ نئے سال کی خوشی، یہ تمام چیزیں اسلامی تصور نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی یہ سال آتے جاتے رہے، لیکن کہیں نہیں ثابت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا. جائے انگریزی سال جو تو بعد میں وجود میں آیا، اس کی تو اسلام سے کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. ہجری کیلنڈر جو ہماری روزوں کے لیے، ہمارے حج کے لیے اور دیگر بہت ساری اسلامی معاملات کے لیے جانا جاتا ہے، اس کی بھی اہمیت اس طرح نہیں ہے کہ اس کے آنے پر ہم کوئی خوشی منائیں اور اس کے جانے پر کوئی غم منائیں. وقت کیا ہے؟ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں اپنا وقت لگا رہے ہیں یا پھر فضول کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ اس پر ہم کو اور آپ کو توجہ دینی چاہیے. وقت کی قدر و منزلت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اسی طرح دن کے بعض خاص وقتوں یعنی ساعات کی قسم کھا کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے. چنانچہ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، اور چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والضحی، چاش کے وقت کی قسم، اور عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر،
असर के वक्त की कसम। बाद लोगों ने असर से जमाना मुराद लिया है, यानी पूरे जमाने की कसम अल्लाह ताला ने खाई है, जो इस बात की दलील है कि जमाना यानी वक्त अल्लाह ताला के नजदीक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इंतहाई अज़ीमुश्शान है, तो वो कसम भी अज़ीमुश्शान चीज ही की खाता है। लिहाजा हमें भी वक्त की कदर करनी चाहिए और इसके ज़िया से बचना चाहिए। वक्त की बड़ी अहमियत है, इसलिए अल्लाह ताला ने पूरे ज़माने की, फजर की, असर की, दिन की, रात की, चाश की अल्लाह ताला ने कसम खाई। अल्लाह ताला कसम खाकर इन चीज़ों की अपने बंदों को दलील दे रहा है कि इनकी कितनी बड़ी अहमियत है। इसकी अहमियत हम समझ सकते हैं, कितना जतन हम करते हैं किसी की जिंदगी के लिए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है तो वक्त आने के बाद जरा सा वक्त भी हम उसको अपनी तरफ से नहीं दे सकते। मौत आ गई तो फिर इंसान को चंद सानियों और सेकंड के लिए भी नहीं रोका जा सकता। लोग चाहे कितनी दवाएं कर लें, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको पहुंचा दें, लेकिन याद रखें जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया तो फिर उसमें ताखीर नहीं होती। तो जमाने की कसम खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है। अल्लाह ताला ने 4 लोगों को इससे मुस्तस्ना किया, इस खसारे से 4 लोग बच सकते हैं। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग हैं जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, जो नेक काम करें, और अल्लाह ताला ने फरमाया वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। इसमें एक ये है कि वो अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाएं, तौहीद की दावत दें, तबलीग करें, खैर के काम की तरफ लोगों को बुलाएं, और फरमाया आखिर में सब्र, जो तकलीफें पहुंचती हैं उस पर सब्र करें। तो 4 बातों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया। वो 4 बातें क्या हैं? वो ये है कि ईमान लाना, नेक काम करना, और दावत व तबलीग करना, और सब्र करना। यही 4 लोग हैं जो खसारे से बच सकते हैं। लिहाजा हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में खसारे से महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्त की अहमियत को अपनी उम्मत के सामने उजागर किया है, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है 6412 नंबर की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानी मग़बूमुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे लोग घाटे में रहते हैं। नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं कि लोगों की अक्सरियत इसमें गफलत बरतती है और घाटा उठा जाती है। वो क्या है? अस्सिहत वल फराग। एक है सेहत और एक है फारिग वक्त। सेहत और फारिग वक्त। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, और तेरा फारिग वक्त जो अल्लाह ने आपको दिया है वो भी अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बात है। यानी ज्यादातर लोग ये 2 नेमतें पाकर भी इनसे फायदा नहीं उठाते। सेहतमंद है, जो खैर व भलाई का काम करना चाहिए वो अंजाम नहीं देते, लायानी कामों में अपना वक्त लगा देते हैं, आखिर बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। फिर जो सेहत के जमाने में वो कर सकते थे वो इस बीमारी और कमजोरी के दौर में नहीं कर सकते। वल फराग, और जो फारिग वक्त अल्लाह ताला ने दिया है ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अक्सर लोग इससे भी गाफिल होते हैं। लोग वक्त नहीं गुजरता, गेम खेलते हैं, टेलीविजन देखते हैं,
फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्में, मोबाइल फोन पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उनका वक्त नहीं गुजरता। जबकि वक्त बहुत बड़ी नेमत है। जो फारिग वक्त है इसमें वो कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आखिर वो जमाना आ जाता है कि सुबह से शाम तक मशगूल मशगूल मशगूल। अब अगर वो वक्त निकालना भी चाहें कुछ खैर के काम के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता। इस वजह से इस तंदुरुस्ती को हमको और आपको नेमत समझना चाहिए, वरना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नाफरमानी और एहसान फरामोशी है कि अल्लाह ने तंदुरुस्त बनाया, वक्त दिया और आप इसे बेकार कामों में लगा दिए। सैफुल जमानी कहते हैं, इन्ना मिन अलामती इरादिल्लाहि अनिल अब्दी अन युशगिलहु बिमा ला यनफउ। बंदे से अल्लाह ताला के एराज की अलामत में से ये है कि वो उसे उस चीज में मशगूल कर दे जो उसके लिए नफा बख्श ना हो। बंदा अगर अपना वक्त ऐसे काम में लगा देता है जिसका कोई दीनी फायदा नहीं, दुनियावी फायदा नहीं, लायानी काम है, तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की नाकदरी कर रहा है बंदा, एहसान फरामोशी कर रहा है उसकी नेमतों की। उसने जो उसे पैदा किया, उसने जो कोई चीज अता की, तो चाहिए तो ये था उसका सही इस्तेमाल करके वो अपने रब को राजी करता और उसके जरिए से अपने रब को खुश करता, ताकि क़यामत के दिन उसको इसका अजर मिलता। तो अजीज साथियों, हमको और आपको चाहिए कि वक्त की कदर व मंजिलत करें। ये वो लाभ के अय्याम नहीं है जो जिंदगी में अल्लाह ने हमको और आपको दिए कि नया साल आया तो खुशियां मनाए, रोड जाम कर दे, चीखे चिल्लाएं, रात भर पटाखे फोड़ें और सुबह जो है लोगों को नए साल की मुबारकबाद देते रहें। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। देखना यह है कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में फिर एक साल का इजाफा किया है आगे बढ़ने के लिए। हम इसमें अपने परवरदिगार की क्या शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी शरीयत पर किस कदर अमल करते हैं और उसकी नाफरमानियों से किस कदर बचते। लेकिन लोग बुरे लोगों का साथ इख्तियार करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ये तमाम काम अंजाम देते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में ऐसे लोगों का जिक्र किया। फरमाया ये जो दोस्ती और यारी है, ये गलत किस्म के लोगों से जो सोसाइटी में इंसान रखता है और माशरे के अंदर उसके बुरे दोस्त होते हैं, ये कयामत वाले दिन उसको कैसे धोखा देंगे देखें और इंसान कैसे पछताएगा। फरमाया वयौम यउद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। उस दिन जालिम अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ ही अपनी रविश इख्तियार की होती, हाय अफसोस काश मैंने फला शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। ये दोस्त भी जो हम बनाते हैं ना, बहुत सोच समझ कर बनाए। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको शरीयत के कामों में आपकी मदद करे, आपको नमाज के लिए उठाए, आपको दीन के कामों की रग़बत दे, आपको बुरी बातों से रोके। दोस्त ऐसा होना चाहिए। ऐसा दोस्त नहीं जो बुरे कामों में आपको लगा दे, जिसकी संगत से आप बर्बाद हो जाएं और जिसकी दोस्ती आपको दुनिया और आखिरत में रुसवा कर दे। ऐसे दोस्त हमारे लिए बहुत बुरे। अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन बंदा क्या करेगा? ऐसे दोस्तों के ताल्लुक से फरमाएगा, ऐ काश कि मैंने रसूल के साथ अपना रिश्ता इस्तवार किया होता। माना है तो जो अल्लाह रसूल की अताअत करने वाले लोग हैं उनका साथी बना होता।
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, फलां को मैं अपना दोस्त न बनाया होता है काश। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, ये जो दोस्त है बुरा, इसने मुझे नसीहत आने के बाद भी गुमराह कर दिया, सीधे रास्ते से मुझे भटका दिया। उसकी वजह से आज मैं रास्ता भटक गया और आज मैं गुमराहों में हो गया। क़यामत वाले दिन एक आदमी इकरार कर रहा है, क्या इकरार कर रहा है कि बुरे दोस्तों की वजह से मैं आज हिदायत आने के बावजूद गुमराही में पड़ गया। और आज यही हाल है, कई लोग हैं सिर्फ बुरे संगत की वजह से बिगड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या बच्चियां, नौजवान हज़रात और ख़वातीन, सबका यही हाल है। इसलिए बुरे दोस्तों को कभी भी अपना साथी हमको नहीं बनाना चाहिए, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को साथी बनाना चाहिए, उसका फ़ायदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हदीस सही बुखारी में आई है, इसके फ़वाइद का जिक्र किया है। आपने फरमाया मसलुल जलीसी सालिही व सूई का हामिलिल मिस्क, एक अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे एक खुशबू बेचने वाला इत्र फरोश, कोई इत्र बेच रहा है, अगर आप उसके पास चले जाएं तो खुशबू से आपका दिमाग पुरसुकून हो जाएगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं अच्छा साथी ऐसे ही है जैसे इत्र बेचने वाला, वनाफिअल कीर, और दूसरा साथी जो बुरा होता है वो भट्ठी झोंकने वाला, लोहार। आप देखें लोहे को गर्म करने के लिए कोयला या ईंधन वो जलाता है, धुआं उड़ता है, चिंगारियां, फिर घन से अपने उस लोहे को दुरुस्त करता है, उससे चिंगारियां निकलती। अल्लाह के रसूल ने मिसाल बयान फरमाई, कहा फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तबता मिन्हु, अगर तुम्हारी दोस्ती किसी इत्र वाले से है तो हो सकता है तुम्हारा वो दोस्त जो इत्र फरोश है वो तुम्हें खुशबू लगा दे, या ये भी मुमकिन है कि आप उससे इत्र खरीद लें। बहरहाल दोनों सूरत में फायदा है, इत्र लगने से, इत्र लगाने से तुम्हारे अंदर से खुशबू उठेगी। व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबा, अगर वो खुशबू ना भी लगाए, आपके पास पैसे नहीं, खुशबू ना भी खरीद सके, तो कम से कम जितनी देर तक उसके पास ठहरे रहेंगे खुशबू तो महसूस करेंगे। देखा आपने, ये अच्छे लोग हैं। अच्छा आदमी आपको अच्छे काम सिखाएगा, या आप खुद उसके पास बैठकर अच्छे कामों को सीख लेंगे, या उसके साथ जहां कहीं जाएंगे वो अच्छे प्रोग्राम में ले जाएगा, सच्चाई और भलाई का रास्ता दिखाएगा, सिराते मुस्तकीम की डगर आपको दिखाएगा। ये अल्लाह के रसूल ने मिसाल बयान की। और वनाफिकुल कीर, अल्लाह के रसूल ने कहा अब रहा वो शख्स जो कोयले झोंक कर ईंधन और आग लगाता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उससे दोस्ती तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती। इम्मा अन युहर्रिक सियाबक, बहुत ज्यादा उसके करीब रहोगे, वो तो काले कलूटे कपड़े पहना है और फटे पुराने, उसको अंदाजा है वो काम जो करता है, लेकिन आप रहेंगे तो उसकी आग, उसकी चिंगारियां आपके कपड़े को जला देगी। अगर उसकी दोस्ती करोगे तो तुम्हारा कपड़ा गंदा भी हो सकता है और तुम्हारे कपड़े जल भी सकते हैं। व इम्मा अन तजिद रिहन खबीसा, और जब तक बैठे रहोगे धुआं उठेगा, बदबू आएगी। और ये मिसाल अल्लाह के रसूल ने बयान की। इसलिए हमारी जिंदगी के कीमती औकात बुरे दोस्तों के साथ नहीं गुजरने चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, उन्हीं से फोन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उन्हीं के साथ शरीयत के दायरे में हंसी मजाक करें, उन्हीं के साथ घूमने जाएं, जहां नमाज का वक्त होगा मिलके नमाज पढ़ लेंगे, जहां कोई प्रोग्राम होगा उसमें हिस्सा लेंगे, दीनी बातें सीखेंगे। और बुरे दोस्त आपको आवारा कामों में लगाएंगे।
यही साल के इख्तिताम और इब्तिदा पर चीखना चिल्लाना, बुरे किस्म के मैसेज करना और यही हल्ला गुल्ला शोर शराबा, इसके अलावा उनसे आप कुछ नहीं सीख सकते। लिहाजा हमको और आपको चाहिए कि इसका हम ख्याल करें। तो ये वक्त बहुत ही कीमती शय है मेरे दोस्तों, ये वक्त ही है जिंदगी का नाम जो है वक्त है, और वक्त से ही हमारी जिंदगी। इन औकात को कीमती समझें और इन औकात में अपने आप को संवार लें, अल्लाह रसूल की अताअत करके अपने औकात को सही कामों में लगा लें जिसका आखिरत में आपको फायदा हो। वरना अगर ये औकात गुजर गए तो फिर जिंदगी में कभी आने वाले नहीं, याद रखें। हर चीज दुनिया में जो है वो मुमकिन है आपको दोबारा मिल जाए। कारोबार में नुकसान हुआ, फिर अल्लाह बरकत दे दे, आप फिर मालदार हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो एक एक सेकंड घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है और फिर मिनटों घंटों में और फिर दिन और रात में ये फिर हमारी जिंदगी में वापस आ सकते हैं? नहीं, दूसरे दिन, दूसरी तारीख है, दूसरा महीना है, दूसरा साल है। अब वो जो चला गया ना वो वापस नहीं आने वाला है। और कयामत के दिन इंसान ऐसी ख्वाहिश करेगा, ए काश कि उसको दुनिया में फिर से भेज दिया जाता, तो कहेगा अब नेकी का काम हम कर लेते। लेकिन अब कहां, ये जो अल्लाह ने दिया ये वक्त गुजर गया, फिर दोबारा यहां पर एंट्री नहीं होगी। इसलिए अपने वक्त की कदर व कीमत करें और इसको गनीमत समझें और इसमें अच्छे काम करें, अल्लाह को राजी करें और अपने रिश्तेदारियों को जोड़ें, अपने फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारें, अपने बच्चों की तरबियत करें, माशरे के अंदर एक नेक इंसान बन के रहें। इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। बाकी औबाशों की तरह चीखना चिल्लाना और हैप्पी न्यू ईयर की जो है सबको मुबारकबादियाँ देना और इसको बड़ी अहमियत, ये सारी चीज़ें शरीयत मुताहरा से साबित नहीं हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक दे और इस सिलसिले में जो कोताहियाँ हमसे सरजद होती हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा दे और उन कोताहियों से बचने की तौफीक दे। जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनके खूल, उनके माल और उनकी आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला कितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए कि यकीनन वही कबूल करने वाला है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन